ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰਸ਼ਿਕੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਿੰਗ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਸਹਾਇ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾਮ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੈ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਮ ਦਿਆ ਵਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀ ਦਾਤਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੀਪ ਚਲਾਈ ਤੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਨਡਿਟ ਕੀਤਾ ਤਿਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਤਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਇਹ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਬੰਬਨ ਕਟਾਏ ਟੋਕਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਾਏ ਗਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਿਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸੁਆਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ ਤਿਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿਤ ਆਵੇ ਚਿਤ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸਿਆ ਰਿਆਇ ਤੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਗੁਰਦ ਕੀ ਪੈਜ ਬੰਤ ਕੀ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਹਾਇ। ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਵਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਤਸਾਹ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਗੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬਾਰਣੀਵਾਂ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਦਾ ਰੱਖਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਦਰ ਜੀਓ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀ ਰਾਹ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਕਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਿਉਟਿਆਂ ਦੀ ਹੋਰ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਓ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਸਰਤਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਸਮੂਹ ਚੰਬਾ ਨਿਵਾਸੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜੋਦੜੀਆਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ। ਜਗਤ ਜਲਨ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਜਪ ਰਾਜੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਔਰ ਪਿੱਛੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰਕ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਬੱਚੇ ਸਮਝ ਕੇ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਸੰਦੀਪ ਕਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਣਾ ਆਵਾਗਮਨ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤੀ ਬਖਸ਼ਣੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਪਾਸ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਬਖਸ਼ ਬਦੇ ਕੋ ਬਹੁੜ ਨ ਭਵਜਲ ਫੇਰਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਓ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਹੈ ਜੋ ਜੀਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਦੂਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕਰਕੇ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਉਪਰ ਤੂੰ ਸੁਆਮੀ ਸੋ ਦੁਖ ਕੈਸਾ ਪਾਵਾ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੋ ਸੇਵਕਾਂ ਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਇਓ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਔਰ ਦੇਹ ਰੋਗਤਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣਾ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਜੀਵਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ
आप उन्हां दे नाम जानी जान हो, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत दे महावाक्यां अनुसार आप जी ने उन्होंने सतगुरु जी इसे तरह बल बख्शना और सेवा करने की सतगुरु जी तंदुरुस्ती बख्शनी और बुद्धि बख्श करके निवाजना, सुचजी मत जीवन जाच बख्श करके निवाजना सतगुरु जी। होर बेअंत संगत आप जी के चरणों पास हाजिर नाजर जान करके अरदासा बेनतियां जोड़ियां करने सतगुरु जी आप जी ने समूह प्रशासन सतगुरु जी आप जी ने मेहर भरिया हाथ रख करके सेवावां करन दे बल बख्शनी। इस तरह आप जी ने समूह संगतां दी हाजरी दर प्रवान करके सतगुरु जी निवाजना इस टाइम करो कृपा। अल्लाह हमारे कसूरों को माफ कर, ए अल्लाह जितने भी कसूर हमसे जानबूझकर अनजाने में फजदन सावन दिन के उजाले के अंदर, रात की अंधेरी के अंदर, ये अल्लाह जो हमसे खताएं सादिर हुई वो सबको जानता है, उन सबको अपने फजल से माफ कर। ए अल्लाह हमारे सबके यहाँ इकट्ठा होने को कबूल फरमा, बैठने को कबूल फरमा और हमारी जो सबकी फिक्र है उस फिक्रों को तेरी बारगाह आली में पेश करते हैं। हमारी फिक्रों को कबूल फरमा और जो चीज़ तुझसे मांगते हैं ए अल्लाह तू तो बिन मांगे देने वाला है। ए अल्लाह हमारे मांगने से पहले वो तो अता फरमा। ए अल्लाह इस वक्त पूरा आलम, पूरी दुनिया, पूरी इंसानियत, ए अल्लाह जितनी भी तेरी मखलूक कायनात के अंदर हैं सबके सब परेशान है या रब्बिल आलमीन। छोटे से छोटा, गरीब से गरीब, अमीर से अमीर, बादशाह, फकीर, जो भी हैं सब परेशान हैं। ए अल्लाह सबकी परेशानियों का मालिक तू है, तुझे मालूम है परेशानी कहाँ से पैदा होती है। तेरा बनाया हुआ इंसान है, तू सब कुछ जानता है कि किस किस चीज़ से परेशान होने वाला है, कौन सी चीज़ इसको राहत पहुँचाने वाली है। ए अल्लाह तुझसे कोई चीज़ छिपी हुई नहीं। ए अल्लाह सबकी परेशानी को दूर कर। ए अल्लाह ये जो कोरोना नाम की जो महामारी दुनिया के अंदर फैली है, या अल्लाह ये सबकी समझ से बाहर है। ए अल्लाह पढ़े लिखे लोगों की समझ से ही बाहर है, अनपढ़ों की समझ से ही बाहर है, डॉक्टरों की समझ से ही बाहर है, साइंसदानों की समझ से ही बाहर है। ए अल्लाह तू खूब जानता है कि कौन सी बीमारी है जिसका इलाज तेरे दरबार के अंदर नहीं। ए अल्लाह इस बीमारी को अपने फजल से खत्म कर। अल्लाह पूरे आलम के अंदर से इस बीमारी को जैसे फैली है ऐसे तो अपने कलम से इसको उठा ले। ए अल्लाह चैन और सुकून अता फरमा। ए अल्लाह इस बीमारी से लड़ते हुए लोग जो दुनिया छोड़ के जा चुके हैं, ए अल्लाह वो शहीद हैं, ए अल्लाह उन सबको कबूल फरमा, उन सब के मरने को कबूल फरमा ले। ए अल्लाह उनकी रूहों को चैन सुकून अता फरमा, करवट चैन सुकून अता फरमा, इज्जत रहमत अता फरमा, अपनी रजा नसीब फरमा। ए अल्लाह जो लोग इन बीमारियों से लड़ रहे हैं, ए अल्लाह उनके लिए शिफाए कुल्ली नसीब फरमा, सेहत कामिला आजिला दायमा अता फरमा। ए रब्बिल आलमीन अपनी रजा नसीब फरमा। तू तो रब है, तू तो कण कण का रब है, जर्रे जर्रे का रब है। ए अल्लाह हम सब तेरे आगे अरदास करते हैं, फरियाद करते हैं, तुझे से हदायत की भीख मांगते हैं। ए अल्लाह तेरे सिवा दूसरा कोई दर नहीं, तेरे से बड़ा कोई दर नहीं, तेरे से बड़ा ना कोई देखने वाला, ना कोई सुनने वाला, ना कोई जानने वाला, ना कोई देने वाला। ए अल्लाह हम सब तेरे आगे हाथ फैलाते हैं। ए अल्लाह हमारे मांगने को कबूल फरमा ले। हम जानते हैं हमसे मांगना भी नहीं आता। ए अल्लाह तुझसे किस तरह मांगा जाए, हमारे अंदर वो ताकत, वो सलाहियत, वो इस्तेदाद हमारे अंदर नहीं। हम तेरे से मांगे और हमारा न कोई ऐसा अमल है जिस अमल को तेरे सामने हम रखें और तुझसे मांगे। ए अल्लाह फिर भी तुझे रजा करने की खातिर दुनिया के अंदर छोटे बड़े अमाल करते रहते हैं। ए अल्लाह तू राजी हो जा, अपनी नाराजगी से, अपने गुस्से से, अपने कहर से, अपने गजब से ए अल्लाह पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो लोग इस बीमारी के अंदर, ए अल्लाह जो तहमादारी के अंदर जितनी भी तंजीमें काम कर रही हैं, खिदमात अपना अंजाम दे रही हैं, ए अल्लाह उन तमाम तंजीमों को तो कबूल फरमा। मेडिकल की लाइन से हो, पुलिस की लाइन से हो, ए अल्लाह एडमिनिस्ट्रेशन की लाइन से हो, या अल्लाह समाज सेवी जितनी भी संस्थाएं हैं, या अल्लाह जितने भी शोबे हैं इस दुनिया के अंदर जो इस बीमारी से लड़ने के लिए अपनी अपनी खिदमात का अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह सबकी खिदमतों को, सबकी सेवाओं को अल्लाह तो कबूल फरमा। अल्लाह अगर तू कबूल फरमा लेगा, अल्लाह तेरी शान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा बेड़ा पार हो जाएगा।
अगर तू कबूल नहीं करेगा, हम वैसे भी तबाही के कगार पर खड़े हैं। ऐ अल्लाह, हमने अपनी बर्बादी के सारे सामान तैयार किए हैं, हमें बर्बादी से, अपनी नाराज़गी से, अपने पैर गुस्से गज़ब से पूरी इंसानियत की हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, जो बाकी के बच्चे हैं, ऐ अल्लाह उनकी जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उनकी ज़िंदगी के अंदर बरकत अता फरमा, चैन सुकून अता फरमा, इज़्ज़त रहमत बरकत अता फरमा। पूरे आलम के लिए, पूरे आलम के इंसानों के लिए हिदायत के फैसले। ऐ अल्लाह, हम सब तेरे खजाने के मोहताज हैं, तेरी हदायत के मोहताज हैं। ऐ अल्लाह, तेरे सिवा कोई हमारी सुनने वाला नहीं, कोई जानने वाला नहीं, कोई देने वाला नहीं। ऐ मौला करीम, हम सब तेरे रहम और करम के उम्मीदवार हैं। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादुपङ्कजम्। ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ देवेन्द्रमौलिमन्दारमकरन्दारकरुणारुणाविघ्नं हरतु हेरम्बचरणाम्बुजरेणवा। ॐ रिद्धिबुद्धिसहिताय रिद्धिसिद्धिसहिताय गाङ्गीं गुङ्गं गणपतये नमः। मैं स्वस्ति वाचन करने जा रहा हूँ जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए हमारे वेदों से निकला हुआ भगवान का अवतार है, जिसमें संपूर्ण संसार की भलाई के लिए मंत्र रूप में प्रार्थना की गई है। तो सभी ने उन भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करनी है कि वो स्वस्ति, वो कल्याण जो है सबका हो। इस भाव के साथ मैं वो मंत्रोच्चारण करने जा रहा हूँ और भगवान से प्रार्थना करने जा रहा हूँ कि कृपा की। ओम स्वस्ति न इंद्रो विधश्रवाः स्वस्ति नां पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम पयः पृथिव्यां पयोः खदेशुः पयोः दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्पति प्रदिशः सन्तु मह्यमः। ओम विष्णोरराटमसि विष्णोष्णपत्रेस्थो विष्णोस्यूरसि विष्णोर्ध्रुवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरौषधयः शान्तिर्वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्मा शान्ति सर्वगुं शान्ति शान्तिरेव सामा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव इमा रुद्राय तव सेकपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरां महेमति यथा संसं द्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् एतन्ते देव सवितुर्यज्ञं प्राहुर्बृहस्पते ब्रह्मणे तेन यज्ञममतेन यज्ञपतिं तेन मामव। ओम मनो ज्योतिर्जुगतां माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरितं यज्ञगुं समिमं दधातु। विश्वे देवा स इहमादयन्तामो प्रतिष्ठः एक वै प्रतिष्ठानां यज्ञो यत्रे तेन यज्ञेन यज्ञन्ते सर्वमेव प्रतिष्ठितं भवति। ओम गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधर्मात्वमजासि गर्भधम्म। ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो भ्रातेभ्यो भ्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो घृतसेभ्यो घृतसपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमः। ओम शांति शांति
शांति ही, सर्वारिष्ट शांति ही। भगवान से प्रार्थना है कि सभी जीवों का कल्याण हो। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। समय ऐसी भयावह स्थिति वाला है कि हम सोच नहीं सकते। एक ऐसे अदृश्य शत्रु से हम सामना कर रहे हैं कि कोई समझ नहीं पा रहा है कि इससे बचें तो कैसे बचें। तो सारा इसके लिए एक ही रास्ता बचता है कि हम ईश्वर से प्रार्थना करें, भगवान से प्रार्थना करें कि ये जो विपत्ति आई है कोरोना महामारी के रूप में, हे प्रभु इससे हमें बचाएं, और जिनकी अकाल मृत्यु हो गई है उनकी शुभ गति हो। हमारी आस्था के अनुसार उनके पूरी तरह से संस्कार भी नहीं हो पाए, और बेचारे कई ऐसे अभागे हैं जो अपने परिजनों को देख भी नहीं पाए। ऐसी परिस्थिति, ऐसी विडंबना कभी किसी ने नहीं देखी। बड़े से बड़े बुजुर्गों से भी पूछा, उन्होंने भी कहा कि ऐसी विडंबना वाली स्थिति हमने कभी नहीं देखी। तो भगवान से प्रार्थना है ये जो परिस्थिति है इससे हमें बाहर निकाले। और ऐसी बात नहीं, इसमें बड़े बड़े अच्छे भगवान के भेजे हुए संत रूप में पूरा विश्व जो है वो लगा हुआ, और ऐसे ऐसे अच्छे लोग, ऐसे सज्जन लोग लगे हुए हैं कि उनकी सेवा देख करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई डॉक्टर के रूप में है, कोई अधिकारियों के रूप में है, अपने जो पूरे तन मन धन से अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों के कल्याण के लिए लगे हुए हैं। मैं उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको और बल दें और उनको शक्ति प्रदान करें और उनके जीवन की कभी हानि ना हो। जिसको अपना शरण स्थान, अपना गढ़ बना लेता है, जो उस पर भरोसा रखता है, जो उस पर विश्वास करता है, जो उससे मांगता है वो उसको देता है। विश्वास के साथ हम सब परमेश्वर की संतान हैं। विश्वास के साथ हम अपने परमेश्वर से मांगें, यकीनन वो उसके कान हमारी दुआओं की तरफ लगे रहते हैं। यकीनन वो हम सबसे बहुत प्रेम करता है और यकीनन वो हम लोगों को बचाना चाहता है। ये मनुष्य की गलतियाँ, ये मनुष्य के गुनाह, मनुष्य के पाप, मनुष्य परमेश्वर से फिर गया, जिसकी वजह से इस तरह की महामारियां आती हैं। लेकिन यकीनन हमारा विश्वास है कि जब हम अपने प्रभु से मांगते हैं, सब इकट्ठे होकर मांगते हैं, तो उसने वादा किया कि मैं आसमान के झरोखे खोलकर तुम्हें देखूंगा, तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा और तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं तुम्हें अपने पंखों की आड़ में ले लूंगा। मैं तुम्हारे लिए झिलम और ढाल बन जाऊंगा। कोई दुख तुम्हारे डेरे के निकट नहीं आने पाएगा। कोई संकट में भी मैं आपके संग रहूंगा। मैं आपकी उम्र को बढ़ाऊंगा, मैं आपको बचा कर रखूंगा। आइए हम लोग प्रार्थना के अंदर जाएंगे। प्यारे परमेश्वर पिता, हृदय की गहराइयों से तेरे पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप मानव जाति से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप सब मनुष्यों से प्रेम करने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आपने मनुष्य को अपनी शक्ल, अपनी समानता और अपनी आत्मा देकर बनाया। प्यारे परमेश्वर पिता, खास करके इस वक्त जबकि हम सब धर्मों के अन्यायी और प्रभु जी जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन प्रभु परमेश्वर इस कार्य के अंदर शामिल है, तो प्रभु जी आप हम सबके ईमान को बढ़ाइए, हम सबके विश्वास को बढ़ाइए, ताकि हम तेरे से मांगते रहें, क्योंकि हम जानते हैं कि जो मांगते हैं आप उनको देते हैं। तेरे परमेश्वर पिता, खास करके इस वक्त जबकि हम लोग इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने नियर एंड डियर वंस को खोया प्रभु जी, बहुत सारे लोगों ने अपने अजीजों को खोया प्रभु जी। प्रभु जी, बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप, बहन भाइयों को खोया प्रभु जी। आप उनको अपनी तसल्ली, अपना इत्मीनान, अपनी सच्ची शांति दीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु परमेश्वर अनाथ हो गए हैं, प्रभु जी आप उनके रखवाले बनिए और हम सबको ऐसी तौफीक दीजिए कि हम एक दूसरे की मदद कर पाएं, एक दूसरे को अपनी प्रार्थनाओं के अंदर याद कर पाएं, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रार्थनाओं के अंदर बहुत ताकत होती है और प्रार्थना ही है जो प्रभु जी आपको इस पृथ्वी की चिंता करने के लिए मजबूर कर देती है। तेरे परमेश्वर पिता, हम खास करके चंबा निवासियों को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी।
अब चंबा के साथ होना, हमारे इस पूरे डिस्ट्रिक्ट के साथ होना प्रभु जी। और प्रभु परमेश्वर जितने भी लोग प्रभु परमेश्वर जहाँ पर कार्य कर रहे हैं, सबके अंदर मेल मिलाप की भावना को उत्पन्न करना, प्यार की भावना को उत्पन्न करना, ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी इस शहर को, इस पूरे डिस्ट्रिक्ट को हम आगे बढ़ा पाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, हम पूरे हिमाचल को, अपने पूरे देश को, पूरे संसार को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं। जबकि कोरोना की वजह से पूरे संसार के अंदर एक त्राहिमाम बचा हुआ है प्रभु जी, होने दीजिए कि तेरी सच्ची शांति, तेरी चंगाई मनुष्य के जीवन के अंदर आ जाए, फिर से वो नॉर्मल हालात पैदा हो जाएं, फिर से हम प्रभु जी तेरे नाम के अंदर अपने आप को आगे बढ़ा पाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, रहम करिए, दया करिए। हम सब डॉक्टर्स के लिए प्रार्थना करते हैं, सब नर्सेस के लिए प्रार्थना करते हैं, सब पैरामेडिकल स्टाफ के लिए प्रार्थना करते हैं, तमाम उन सामाजिक इंस्टीट्यूशंस के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस नोबल कार्य के अंदर लगी हुई हैं। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को तेरी पवित्र हाथों में सौंप देते हैं, अपने देश की पूरी सरकार को तेरी पवित्र हाथों में सौंपते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता, सभी तमाम लोगों को प्रभु परमेश्वर ऐसी आशीष दीजिए कि हम इस वक्त खास करके इस दुख की घड़ी में सब लोगों का साथ मिलकर प्रभु जी उनके लिए दुआएं करें, उनकी सहायता करें। हमारे दैनिक जागरण अखबार के आह्वान पे एक सर्वधर्म जो है प्रार्थना सभा यहाँ पे आयोजित की, उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने कोरोना महामारी में अपनी जान खो दी है, और उन सभी लोगों के लिए जो अस्पतालों में हैं, घरों में हैं और स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, उन सभी के लिए यहाँ पे दुआ की गई। और इसके साथ साथ जो हमारे कोरोना महामारी में जो हमारे वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, चाहे वो सीधे तरह से काम कर रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं, उन सभी के लिए भी प्रार्थना की गई कि उनको शक्ति मिले, ताकि वो और ज़्यादा मेहनत के साथ और ज़्यादा लगन के साथ जो मरीज़ हैं, जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं, उनकी जो है देखभाल कर सकें और उनको स्वास्थ्य लाभ दे सकें। हम सभी के लिए ये बहुत ही मुश्किल सा समय है, जहाँ पे सारी जो हमारी सिस्टम है वो जो है प्रभावित हुआ है। और मुझे लगता है इस तरह की प्रार्थना सभा बहुत ही तर्कसंगत है, ताकि जो लोग जिनकी अकाल मृत्यु हुई है उनकी आत्मा के लिए हम शांति प्रदान करें, उसके लिए प्रार्थना करें, और जो लोग स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करें।